In this video, you'll get answers of many questions that will be very helpful in your study and especially in your time management and planning of study. As we are talking about planning and time management, I have one favorable suggestion for you, for viewers, that please watch my video on how to plan our CSIR NET Life Sciences exam study in 3 months. You'll get best strategy, planning, tips and tricks for study and cracking the exam. So don't forget to watch my video. You can also watch my other video on numerical problems, on Chargaff's rule and melting temperature of DNA. If you'll watch these video, these points are done for you regarding examination. ये वीडियो देखने से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं. सो इन सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल के पेज पे जाइए, वीडियोस को क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे मेरे वीडियोस देख लीजिए. And friends, don't forget to press like and subscribe, that is bell button which is there on your screen. So coming back to this video, in this video you'll get idea and answers of many questions like which are the most important units for CSIR NET Life Sciences exam. In this I'll tell you and show you which units hold high weightage for preparation and exam point of view also. Second question, which are the units you should not skip? Third question, which are the most important points from each point? In this question discussion, you will come to know very important points that you should not miss while studying. Next question we are gonna talk about is how many units should you study to crack the exam. Every student appearing for exam have this question in his mind. So we'll discuss and you'll get best idea and answer after watching this video. Next question is how many units should you study to crack the examination. You'll get answer of this question also. One more important question everyone thinks about is which are the units you can skip from studies but still crack the exam. So you'll also get बेस्ट आंसर ऑफ दिस ऑल्सो. इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ जो कि आपको करेक्ट वे दिखाएगा एंड हर आंसर का जवाब आपको मिल जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री मिल जाएगा. बट प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा. इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच are the most important units for CSIR NET Life Sciences exam. So मैं आपको बता दूं कि CSIR NET Life Sciences के सिलेबस में 13 यूनिट्स है. आप स्क्रीन पे देख सकोगे 13 यूनिट्स. सो फर्स्ट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन relevant to biology. Second is cellular organization. Third, fundamental processes. Then cell communication and cell signaling. Fifth is developmental biology. Sixth is system physiology plants. Seventh is system physiology of animal. Eighth, inheritance biology. Ninth, diversity of life forms. 10th, ecological principles. 11th, evolution and behavior. 12th, applied biology. And 13 and last is methods in biology. Now अब मैं आपको बताती हूँ इन 13 यूनिट से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन से हैं, जिसके क्वेश्चंस आपको पार्ट सी में ज़्यादा देखने मिलते हैं एंड पार्ट बी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं. सो आपको मैं जो यूनिट्स बताने वाली हूँ इन यूनिट्स की स्टडी आपको अच्छे से करनी है, डिटेल में करनी है, इन डेप्थ करनी है. सो नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स इज यूनिट नंबर 1 इटसेल्फ. सिलेबस में जो है दैट इज़ मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी. इस यूनिट से पार्ट बी एंड सी दोनों में बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलते हैं. इसमें हर पॉइंट स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. यूनिट बेसिक एंड एडवांस नॉलेज दोनों पे डिपेंड करता है एंड ये बेसिक एंड एडवांस नॉलेज के कंसेप्ट को यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. सो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है. इसमें आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से करने हैं. यू कैन स्टार्ट विथ अमाइनो एसिड्स, देन प्रोटीन स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, डिसऑर्डर रिलेटेड टू प्रोटीन. सो ऐसे ऑल बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए,
आपको सबके सब करने हैं। बायोमोलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शंस होते हैं, बॉन्ड्स, लिंकेजेस, वो भी आपको अच्छे से देखने हैं, क्योंकि यूनिट का नाम ही है बायोमोलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शन। एंड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछे गए हैं, सो इसको अच्छे से कर लीजिए। नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इज़ फंडामेंटल प्रोसेसेस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से जो भी फंडामेंटल प्रोसेसेस है, इस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस यूनिट में फंडामेंटल प्रोसेसेस दोनों सेल के दिए गए हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के। जैसे कि फंडामेंटल प्रोसेसेस जैसे कि रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, फिर और दूसरे प्रोसेसेस जैसे कि डीएनए रिपेयर आएगा, ओपेरॉन आएगा, आरएनए प्रोसेसिंग आएगी, बहुत सारे एंजाइम आएंगे। सो ये यूनिट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट आपने बहुत अच्छे से करना है। जितना करोगे, जितना पढ़ाई करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। ये यूनिट की कुछ टिप्स बता दूँ इस यूनिट के प्रिपरेशन के लिए। टिप नंबर 1, while preparing for every process like DNA replication, transcription, translation, DNA repair, operon, आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर स्टडी करना है। कौन से 2 चीज़ों को करने हैं ध्यान में रखकर स्टडी, मैं आपको बताती हूँ। आपको प्रोकैरियोटिक प्रोसेसेस एंड यूकैरियोटिक प्रोसेसेस पे ध्यान देना है। ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, ये सारे प्रोसेसेस में। ओके, प्रोकैरियोट्स में भी ये प्रोसेस होते हैं एंड यूकैरियोट्स में भी ये प्रोसेस होते हैं। दोनों प्रोसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में ये प्रोसेसेस बहुत ही अलग होते हैं, पूरा का पूरा फ़र्क होता है, पूरा अलग होता है, ऐसा नहीं है। 90 to 95% सिमिलर होते हैं ये दोनों प्रोसेस दोनों सेल्स में, लेकिन 5 to 10% डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। अब डिफरेंसेस आपको एंजाइम में मिलेंगे, एंजाइम के स्ट्रक्चर में मिलेंगे, रेट ऑफ प्रोसेस में मिलेंगे, टाइमिंग्स में मिलेंगे, एंजाइम के रोल्स में मिलेंगे, प्रोसेस के लोकेशन में मिलेंगे। क्योंकि देखो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट, सो प्रोसेस लोकेशन में आपको बहुत जगह डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, और इससे आपको पार्ट बी में बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो आपको करना क्या है, हर प्रोसेस जो भी स्टडी कर रहे हो, दोनों के डिफरेंसेस दिमाग में रखकर अच्छे से आपको कंपेयर करने हैं, स्टडी करने हैं, नोट्स बनाने हैं और अच्छे से आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 2, हर प्रोसेस को उसके न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चन के साथ लिंक करना है आपको। जब आप यूनिट की स्टडी ख़त्म करोगे तो आपको करना क्या है, उस हर प्रोसेस के आपको न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड स्टडी करते टाइम भी आपको लिंक करना पड़ेगा क्वेश्चंस एंड स्टडी करते टाइम, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, दैट इज़ इनहेरिटेंस बायोलॉजी, विच इज़ द 8th यूनिट इन CSIR NET लाइफ साइंसेस सिलेबस। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट है रिगार्डिंग जीन्स, जेनेटिक मैनिपुलेशन, मेंडेलियन प्रिंसिपल, CTC। आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से करना है, डिटेल स्टडी करना है, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पार्ट करना है। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इज़ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये यूनिट बहुत ईजी है, मैं आपको बोलती हूँ कि ये यूनिट बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ये आप प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में कर सकते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा है। आपको इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही ज़्यादा देखने मिलेंगे एग्ज़ाम में। सो आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स पा सकते हो अगर ये यूनिट अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से करते हो। एंड ईजी भी यूनिट है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इस यूनिट में आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ अलग से इसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसका बेसिक जनरली हम सबको पता होता है या हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि इजी पार्ट है। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा यूनिट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज़ इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। सेम कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स देने वाला यूनिट है। इन्वेस्ट लेस एंड गेट मोर टाइप वाला ये 2 यूनिट है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज़ मेथड्स इन बायोलॉजी, यूनिट नंबर 13। बायोलॉजी के सारे टेक्निक्स मेथड इसमें हैं। आजकल पूरा खेल मेथड्स एंड स्पेशली डायग्नोस्टिक मेथड एंड टेक्निक्स पे चल रहा है। आपको पता होगा वायरल डायग्नोस्टिक मेथड्स आजकल बहुत स्कोप में हैं। सो ये यूनिट को अच्छे से आप कर लीजिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज़ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन।
अब इस यूनिट में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, वो बी सेक्शन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी का जो सोल्यूट ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, वो पार्ट सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट से पार्ट सी में अब तक देखने मिले हैं। सो ये यूनिट आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इस यूनिट में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। सो ये यूनिट थोड़ा अलग है, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम इसको देना पड़ेगा, लेकिन इसे अच्छे से कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो ये 8 यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये स्टडी करने ही करने हैं। सिर्फ लिटरेचर रीड करके स्टडी नहीं करनी है, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझने हैं। अब ये 8 यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के आपको करने नहीं हैं। उन यूनिट के बारे में मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए, सो लेट्स प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, विच आर द यूनिट्स यू शुड नॉट स्किप। सो 8 units are most important that we discussed just now. So number 1, molecules and their interaction, fundamental processes, okay, then evolution, methods in biology, cellular organization, जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं वो पूरे यूनिट्स, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये जो मैंने अभी 8 यूनिट्स आपको बताए वो इम्पॉर्टेंट है। प्लस सेल सिग्नलिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कर सकते हो, आपको करनी ही पड़ेगी। आप ये सेल सिग्नलिंग के पॉइंट्स अच्छे से कर लीजिए। सेल सिग्नलिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे क्वेश्चन पेपर में। सो इम्पॉर्टेंट है सेल सिग्नलिंग, आप इसको भी पढ़ लीजिए। So our next question is, how many units should you prepare to crack the exam? So this is very different question. This is reality that you can skip some units and can prepare well for rest of the units and still qualify. I'll also tell you the minimum number of units you should prepare to qualify the exam. But I have one important suggestion for students. Those are devoting their full time for this exam preparation. Please study and do all units. If you are keeping some least important points from all units, then that's fine for you. But if you have time, like 6 months or 3 months, and you are supposed to invest your full time only for studying, then you should do all units. Because जितना ज़्यादा पॉइंट्स की आप फुल स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा यूनिट्स आप करोगे, आपके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के एंड क्वालिफाई करने के चांसेस भी बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम जिस यूनिट के भरोसे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसमें पार्ट सी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको समझते हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको समझ में नहीं आते पढ़ाई करने के बाद भी, एंड अनफॉर्चुनेटली ये मार्क्स आपके हाथ से चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट करके जाना है। और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास टाइम की कमी है, जो नहीं कर सकते, उनको मिनिमम यूनिट्स के बारे में सोचना है। सो यू शुड डू एटलीस्ट 10 to 11 यूनिट्स फ्रॉम 13 यूनिट्स, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू क्वालिफाई। ओके, 10 to 11 यूनिट्स। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स तो आपको मैं बता चुकी हूँ, बाकी के कोई भी 2 से 3 यूनिट आप कर लो। ओके, सो लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ मेनी यूनिट्स can you skip and still qualify for the exam? So answer is 2 to 3 units you can skip from preparation, but again I'll tell you, skip if you don't have time. If you have time, then it's always good to go in battlefield with complete preparation and with all weapons. So अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे यूनिट्स कर लीजिए, या फिर आप 2 से 3 यूनिट को स्किप कर सकते हो। लेकिन वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 यूनिट्स है उससे आपको स्किप नहीं करने हैं, बाकी के कोई भी यूनिट स्किप कर लीजिए। सो नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन इज, विच आर द यूनिट्स यू कैन स्किप? सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। इस क्वेश्चन पे आपको सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे। बहुत सारे लोग बताते हैं, उनके हिसाब से बताते हैं कि आपने जो स्टडी कर रहा है, आपने कौन से यूनिट स्किप करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, द यूनिट्स दैट सीम टफ एंड हार्ड फॉर यू, those units you should skip. You should decide, students should decide which are the 2 or 3 units you won't be comfortable with. It depends on likes and dislikes of students in the syllabus, and also depends on weak and strong area of that student. So one more thing,
दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है, या फिर स्टूडेंट ने मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में किया. इफ़ समवन हैज़ डन मास्टर्स इन बॉटनी देन इट वुड नॉट मेक एनी सेंस फॉर हिम और हर टू skip plant physiology, even though I or anyone else on internet is continuously telling that this is important unit. In the same manner, student with MSc zoology can't skip animal physiology. So it's better that you decide that which are the units you will skip according to your interest. So here we have discussed many important questions. उम्मीद है इससे आपको थोड़ा तो फ़ायदा मिल जाएगा. If you like this video, please press like button and subscribe to the channel, जिससे आपको आगे के videos easy मिल जाएंगे. Thank you.